Hello guys, welcome again to our online classes. In this lesson we will discuss some examples which are related with the last videos, and in the last videos we were discussing about subsets, intervals, supersets and proper subsets. Now I am starting from the example number 9th of NCERT syllabus. And this is the exercise 1.3. we were discussing about introduction. So let's proceed. The given example is some of the sets are given. First set is empty set. Second is A is a set of element 1 and 3. B is a set of 1 to 159, and last C is a set of 13579. 13579. Clear? What we have to do for this question, the statement is consider the sets which are given. Insert the symbol of subset or not a subset. मीन्स हमें क्या इंसर्ट करना, हमें इंसर्ट करना है कि ये सेट म्यूचुअली सबसेट्स हैं या नहीं, कौन कौन से रिलेशन में. ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेट. फर्स्ट इज हमें बताना है फाई इज अ सबसेट ऑफ बी और नॉट. ठीक है. बेसिकली फाई इज ए एम्प्टी सेट एंड एम्प्टी सेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट. जो दुनिया में जितने भी सेट बने उन सब का सबसेट क्या होता है? फाई होता है. तो हम यहां से ये डिस्कस कर सकते हैं कि फाई इज ए सबसेट ऑफ सेट बी. तो इसके लिए मैं सबसेट का सिंबल ये होता है जो कि मैं अप्लाई कर दिया. क्लियर? सेकंड इज ए इज ए सबसेट ऑफ बी और नॉट. चेक all the elements which are exist in the set A. set A में जो एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं वो है 1 and 2, but in the set B the elements are 1, 3 and 5. so for this case 1 is exist in the B, but B do not exist in set 3 do not exist in the set B. so therefore A is not a subset of B. Now the third part, which is A is a subset of C or not, and last is B is a subset of C or not. ठीक है. फाई तो देखो A का भी होगा, B का भी होगा, C का भी होगा. A B का नहीं होगा. C में हम रिलेट करते हैं 1 is existing और 3 is also. So both the elements of A exist in set C. Therefore we can say that A is a subset of B. ये C है और ये सबसेट का सिंबल है. Now A is a subset of C. Third we have completed. Now last we check for B and C. 1 exists in the C, 5 also existing, 9 exists. So all the elements of set B exist in the set C. So B is a subset of C. Got it? So this is the solution of our example number 9 from NCERT syllabus. Next, example number 10. A, B, two sets are given. A is a set of all the vowels of English alphabet, and B is another set of alphabets A, B, C, D, E. Is there A is a set of B or not? If yes, then why? If not, then why? मीन्स हमें ये कंसेप्ट चेक करना है कि A B का सबसेट है या फिर नहीं है. क्लियरली यू it is visible that A is existing, E does not, I also, O also and U. So other than A, all the element do not exist in the set B. So therefore we can say that A is not a subset of B. And the reason for behind it, all the elements of set A
do not exist in the set B, therefore we can say that A is not a subset of B. Clear? So this is the solution of the example number 9 and 10. Now I'm starting our next topic, next content, which is power set. What is the meaning of power set? मान लो हम एक का पावर सेट कैलकुलेट करने जाएं तो इसको लिखेंगे अपन पी ए, पावर सेट ऑफ सेट ए. क्लियर? अब देखो अपन एक कोई पर्टिकुलर सेट की बात करते हैं. मान लो A इज ए सेट ऑफ एलिमेंट 1 and 2. कुछ छोटा सा स्मूथ एग्जांपल लिया मैंने और इसी के बेसिस पे हम समझ सकते हैं इजीली. A is a set of element 1 and 2 and there are only 2 elements. ठीक है. अब हम पहले इसके सबसेट बनाते हैं. A के सबसेट बनाओ, कितने होंगे? पावर सेट बनाने का जो फॉर्मेशन है वो क्लियर कर रहा हूं. सबसेट ऑफ A, क्या क्या होंगे देखो. पहला तो 5 होगा डेफिनेटली, बिना सोचे समझे लिख दो. हर एक सेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो कि 5 इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एनी सेट. देन अब पर्टिकुलर एलिमेंट्स पे आ जाओ. 1 हुआ, 2 हुआ, क्योंकि 1 एग्जिस्ट करता है इसमें 2 भी एग्जिस्ट करता है और इसमें 1 2 भी एग्जिस्ट कर रहे हैं. सो देयर आर 4 सबसेट्स ऑफ सेट ए. क्लियर है? अब ये जो सबसेट्स बने हैं 5 1 2 एंड 1 2 के साथ में, इनका खुद का एक सेट बनाओ जो कि देखो ध्यान से समझना क्या होगा. 1 सॉरी इसका खुद का सेट बनाएं तो कर्ली ब्रेसेस, देन 5 एंड देन 1 एंड नेक्स्ट इज 2 एंड नेक्स्ट इज 1 एंड 2. और ये जो सेट बना है, फिर से जो सेट बना है, इसको बोलते हैं पावर सेट ऑफ सेट ए और इसको हम पी ए से डिनोट करेंगे. क्लियर है बात यहां तक? तो इसकी डेफिनेशन ये रहेगी. एग्जाम्पल पढ़ा रहने दो, आप इसको कॉपी कर लेना. पॉसिबल सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट. चलो ऑफ ए सेट इतना. ए तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, बी भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. पॉसिबल सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट मींस एक सेट के सभी सबसेट्स का जो पॉसिबल सेट बनेगा उसको क्या कहेंगे? पावर सेट इज नॉन एज पावर सेट. और इसका नोटेशन मैंने यहां पे क्लियर कर दिया है. ठीक है. अब अगला कंटेंट आता है कि हमें, अब थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन करता हूं. मान लो कि इसके एलिमेंट की बात पूछिए. समवन विल आस्क टू यू हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर. तो अपन 1 2 3 काउंट कर लिया. अब इसमें बताएंगे क्या क्या एलिमेंट हैं, कौन से. तो 5 ठीक है, एम्प्टी सेट इसका एक सबसेट होगा, एलिमेंट होगा. अब एक जो 1 है ना, ये 1 नहीं है इसका सबसेट, सॉरी 1 इसका एलिमेंट नहीं है, इसका एलिमेंट होगा यहां से लेके यहां तक. सेकंड एलिमेंट इज दिस एंड थर्ड एलिमेंट इज दिस. ठीक है. तो इसका जो पावर सेट का जो एलिमेंट्स है वो पहला तो हो गया 5, सेकंड हो गया आपका सिंगलेटन जो कि 1 के साथ में है, तो सब सेट ऑफ 1, सेट ऑफ 2, सेट ऑफ 1 एंड 2. दीज आर एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए. क्लियर है बात यहां तक? अब हम देखो इसके नेक्स्ट कंटेंट पे चलते हैं. नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a power set. Power set, number of elements in a power set. तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, possible
number of possible subsets of any set, number of subsets of any set, number of subsets, ठीक है यहाँ तक। तो अब number of elements in a power set, तो इस पावर सेट में एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 एंड 4 है। तो इस ये 4 हमें मिला कहाँ से, तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एनी सेट। तो ये अपन ने एक सेट सेलेक्ट किया, इसमें पॉसिबल सबसेट्स क्या क्या होंगे, 1 2 3 एंड 4, तो यही तो इसके एलिमेंट होंगे। बात समझ में आई कि नहीं? मींस अपन ने ए सेट सेलेक्ट किया, इसके सबसेट्स बनाए अपन ने 5 से लेके खुद तक, तो 5 देन 1 देन 2 एंड देन 1 2, तो ये टोटल कितने एलिमेंट्स हुए और कितने सबसेट्स बने, 4। तो ये जो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इस सेट के पावर सेट के। गॉट इट? अब इसका फॉर्मूला क्या रहता है, इसका फॉर्मूला रहेगा, अपन इसको डिनोट कर सकते हैं टू द पावर m, वेयर m इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी इन ए सेट। ए लिख देता हूं, मीन्स इसमें एलिमेंट कितने हैं, टू द पावर 1 एंड 2, ठीक है, 2 एलिमेंट है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए पावर सेट कितने बनेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ए, तो टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू 4। यदि यहां पर 3 होते, लेट सपोज 1 2 3 का कोई सेट बनता, तो हम इसके क्या क्या बनाते, देखो मैं एग्जांपल्स एक्सप्लेन कर रहा हूं। मान लो कि मैंने कोई एग्जांपल लिया, सेट बी के कॉरस्पॉन्ड्स, B इज ए सेट ऑफ एलिमेंट्स 1 2 एंड 3। तो मैंने ये डिस्कस की, इसके अपन सबसेट्स की बात करते हैं। एस मीन सबसेट इज इक्वल्स टू, फर्स्ट होगा एम्प्टी सेट या फिर 5, जो भी अपने आप में एम्प्टी सेट को डिनोट करता है। सेकंड होगा 1, थर्ड 2, नेक्स्ट 3, आफ्टर इट 1 एंड 2, आफ्टर इट 2 एंड 3, आफ्टर इट 1 एंड 3, एंड देन 1 3 का आ गया। अब लास्ट में खुद का कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो टोटल कितने हुए, 8 हुए। तो नंबर ऑफ पावर सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट ऑफ ए, जो कि बनेगा आपके पास 2 द पावर 3 इज इक्वल्स टू 8। क्लियर है? अब देखो ये फॉर्मूला बन गया आपके पास, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए पावर सेट। अब ये कोई सेट है, ठीक है, हमें इसके प्रॉपर सबसेट्स कैलकुलेट करने हैं। अगला फॉर्मेट है या फॉर्मूला रहेगा, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए सेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है कि ये इसका प्रॉपर सबसेट है, बस यही इसका एक प्रॉपर सबसेट नहीं है कि एक ऐसा सेट जिसमें वैल्यूज इक्वल नहीं होनी चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट इक्वल नहीं होने चाहिए, इनसे लेस होने चाहिए। तो यहाँ पर भी इक्वल नहीं है, इन दिस ऑल्सो, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी एलिमेंट, हाँ ये एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन सभी के सभी नहीं है। जैसे इसमें 5 है, इसमें 1 है तो 2 3 नहीं है, 2 है बट 1 एंड 3 डू नॉट, 3 है तो 1 2 नहीं है, 1 2 है तो 3 नहीं है, 2 3 है तो 1 नहीं है, 1 3 है तो 2 नहीं है, बट यहाँ पर 1 2 3 है तो सभी के सभी है। तो इसका फॉर्मूला रहेगा, बस ये लास्ट वाला ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, मैंने ये मेंशन किया था, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी प्रॉपर सबसेट में। तो इसका फॉर्मूला होगा टू द पावर m माइनस 1, क्योंकि एक हटा दो, बात समझ में आई कि नहीं भाई, एक को ही तो रिमूव करना है। तो ये हो गया आपका पावर सेट। आई होप सो यू अंडरस्टूड, सो पोज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब एक लास्ट टॉपिक अपने पास बचता है जो कि एक एक्सरसाइज से रिलेटेड है, देन वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज, जो कि फंडामेंटल है आपके पास यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मीन होता है आपके पास, मान लो कोई भी एक सेट है, अब ये जिस मैटर में अपन डिस्कस कर रहे हैं उसी के रिगार्डिंग वैल्यू चलेगी। कहने का मीनिंग ये निकला कि यूनिवर्सल सेट का मीनिंग हो जाता है इन एनी कॉन्टेक्स्ट
मतलब जिस मैटर की अपन बात कर रहे हैं, इन एनी कॉन्टेक्स्ट द लार्जेस्ट सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं अपन क्लास 9th की बात करते हैं, तो क्लास 9th के लिए सबसे बड़ा आपके अपने एरिया में क्या हो जाए, स्कूल हो जाती है, तो वो स्कूल उसके लिए क्या बन गई, यूनिवर्सल सेट बन गई, है ना। अब मैंने मान लो नंबर सिस्टम की बात की, मैंने नेचुरल नंबर लिया, नेचुरल नंबर के लिए आपका क्या हो सकता है, इंटीजर सबसे लार्जेस्ट हो सकता है, या रियल नंबर भी पॉसिबल हो सकता है। तो नेचुरल नंबर के लिए रियल नंबर एक यूनिवर्सल सेट का वर्क करेगा, और इंटीजर्स भी उसके लिए एक यूनिवर्सल सेट के लिए वर्क करेगी। ये कंडीशनल होता है, मतलब कि ये जो कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हमें सेलेक्ट करना होता है। मान लो कि मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल सेलेक्ट किया या इक्विलेटरल ट्रायंगल सेलेक्ट किया, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल किसके पार्ट है, बेसिकली ये ट्रायंगल्स के पार्ट है, तो कोई भी एक ट्रायंगल के पार्ट हो सकते हैं। मतलब कि दुनिया में जितने ट्रायंगल उनमें कहीं ना कहीं आइसोसेलेस भी होगा और कहीं ना कहीं उनमें इक्विलेटरल ट्रायंगल भी होगा। और मैंने मान लो कि ट्रायंगल की ही बात की, ट्रायंगल के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो ट्रायंगल बेसिकली ये पॉलीगन, ट्रायंगल एक पॉलीगन का ही तो पार्ट है। ट्रायंगल किसका पार्ट है, ट्रायंगल इज अ पार्ट ऑफ अ पॉलीगन, सो द पॉलीगन इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ अ ट्रायंगल। अब मैं पॉलीगन के कॉरस्पॉन्ड चलता हूँ, पॉलीगन किसका पार्ट है, पॉलीगन इज अ पार्ट ऑफ कर्व, क्योंकि ये क्लोज कर्व का पार्ट होता है। क्लोज कर्व में जो कि एक तो साइड से बना होता है और एक कर्व से बना होता है, तो कर्व से बने हुए यदि अपन हटा दे तो साइड से बने हुए बचते हैं, और जो साइड से जो कर्व बनते हैं उन कर्व्स को अपन क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं। तो पॉलीगन के लिए आपका यूनिवर्सल सेट हो जाता है कोई भी क्लोज कर्व, नॉट ओपन, क्लोज कर्व, क्योंकि पॉलीगन इज ऑल्सो एक क्लोज कर्व। तो अपन ऐसे समझ सकते हैं इस बात के लिए। तो इसके लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं है, इसकी कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है, बस इसको ये रखना, इसका जो नोटेशन होता है इसको कैपिटल यू से डिनोट किया जाता है। क्लियर है, आई होप सो अंडरस्टूड। अब देखो ये अपना कंटेंट पूरा हो गया एक्सरसाइज 1.3 के लिए, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। आई होप सो यू अंडरस्टूड, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट, enjoy online classes, enjoy online study. Thanks.